Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. So this is the second part and second video on the chapter 1.7 Why We Travel by Siddharth Pico Raghavan Iyer from class 12th English. मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टॉप हियर, go and watch that first video because this is in continuation of the first part. This is the second part. And in the first part, we learned about the author, Pico Iyer. We learned about the chapter's basic concept, this essay, Why We Travel. And then we started reading and understanding the chapter line by line. I read the lines and then I explained in Hindi. And today in this video, we will pick up from exactly where we left last. So without wasting our time anymore, let's start the video. This travel spins us round in two ways at once. It shows us the sights and values and issues that we might ordinarily ignore. But it also, and more deeply, shows us all the parts of ourselves that might otherwise grow rusty. For in traveling to a truly foreign place, we inevitably travel to moods and states of mind and hidden inward passages that we'd otherwise seldom have cause to visit. On the most basic level, when I'm in Tibet, though not a real Buddhist, I spend days on end in temples listening to the chants of sutras. I go to Iceland to visit the lunar spaces within me, and in the uncanny quietude and emptiness of that vast and treeless world, to tap parts of myself generally obscured by chatter and routine. इस तरह ट्रैवल हमें एक साथ दो तरह से घुमाती है. ये हमें उन मंजरों, मूल्यों और मुद्दों को दिखाती है जिन्हें हम आम तौर पर अनदेखा कर देते हैं, और ज़्यादा गहराई से हमें खुद के उन सभी हिस्सों को दिखाती है जो अदरवाइज जंग खा जाएंगे. किसी भी फॉरेन प्लेस पर ट्रैवल करने से हम अनिवार्य रूप से अपनी मनोदशाओं और मन की अवस्थाओं और छुपे हुए आंतरिक मार्गों की यात्रा करते हैं, जहां जाने का शायद हमें कभी कारण नहीं मिलता. सबसे बुनियादी स्तर पर जब मैं तिब्बत में होता हूँ, हालांकि मैं रियल बुद्धिस्ट नहीं हूँ, तो मैं कई दिन सूत्रों के मंत्रों को सुनकर बिता देता हूँ. मैं अपने अंदर के लूनार स्पेसेस का दौरा करने के लिए आइसलैंड जाता हूँ और इस विशाल वृक्षहीन दुनिया की अजीब सी शांति और खालीपन में अपने आप के उन हिस्सों को टैप करने, छूने, महसूस करने जाता हूँ जो आमतौर पर बकवास दिनचर्या से धुंधला गए हैं. We travel then in search of both self and anonymity, and of course in finding the one we apprehend the other. Abroad, we are wonderfully free of caste and job and standing. We are, as Hazlitt puts it, just the gentleman in the parlor, and people cannot put a name or tag to us. And precisely because we are clarified in this way and freed of inessential labels, we have the opportunity to come into contact with more essential parts of ourselves, which may begin to explain why we may feel most alive when far from home. Abroad is the place where we stay up late, follow impulse, and find ourselves as wide open as when we are in love. We live without a past or future, for a moment at least, and are ourselves up for grabs and open to interpretation. We even may become mysterious to others at first, and sometimes to ourselves, and as no less a dignitary than Oliver Cromwell once noted, a man never goes so far as when he doesn't know where he's going. फिर हम खुद की और गुमनामी दोनों की तलाश में ट्रैवल करते हैं, और ऑफ कोर्स एक को खोजने में हम दूसरे को पकड़ लेते हैं. विदेशों में हम आश्चर्यजनक रूप से जाति, नौकरी और प्रतिष्ठा से मुक्त होते हैं. हम, जैसा कि हैजलिट कहते हैं, बस अ जेंटलमैन इन द पार्लर होते हैं. पार्लर का मतलब लर्नर्स यहाँ पे रूम है. तो पीको ईयर कहते हैं कि जब हम किसी बाहरी मुल्क में होते हैं तो हम बस किसी रूम में बैठे एक आम इंसान होते हैं, और चूंकि लोग, वहाँ के लोग हमें नहीं जानते, तो वो हमें किसी तरह जज नहीं कर सकते, हमें कोई नाम या टैग नहीं दे सकते. और ठीक इसीलिए, क्योंकि इस तरह से हम क्लैरिफाइड रहते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं और सारी अनावश्यक लेबलों से मुक्त होते हैं, हमारे पास खुद के और भी ज़्यादा ज़रूरी हिस्सों से जुड़ने का मौका मिलता है. और शायद ये चीज़ इस बात को समझा सकती है कि क्यों हम घर से दूर होने पर भी सबसे ज़्यादा जीवित महसूस करते हैं. विदेश वो जगह है जहाँ हम देर से उठते हैं,
अपनी इच्छाओं का पालन करते हैं और अपने आप को उतना ही खुला पाते हैं जितना कि जब हम प्यार में होते हैं। हम पास्ट या फ्यूचर के बिना रहते हैं, कम से कम एक पल के लिए, और अलग अलग इंटरप्रिटेशन के लिए, धारणाओं के लिए तैयार होते हैं। हम रहस्यमयी भी हो सकते हैं, पहले दूसरों के लिए और कभी कभी खुद के लिए। और जैसा कि ओलिवर क्रॉमवेल जैसे डिग्निटरी ने एक बार कहा था कि एक आदमी कभी भी इतनी दूर नहीं जाता जब तक वो नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है। There are, of course, great dangers to this, as to every kind of freedom. But the great promise of it is that, traveling, we are born again and able to return at moments to a younger and a more open kind of self. Traveling is a way to reverse time, to a small extent, and make a day last a year, or at least 45 hours. And traveling is an easy way of surrounding ourselves as in childhood with what we cannot understand. Language facilitates this cracking open, for when we go to France, we often migrate to French, and the more childlike self, simple and polite, that speaking a foreign language educes. Even when I am not speaking pidgin English in Hanoi, I am simplified in a positive way and concerned not with expressing myself but simply making sense. तो लर्नर्स पिकोयर फिर कहते हैं कि बेशक इसमें बहुत से खतरे हैं। यहाँ पे इसका मतलब है फ्रीडम, जो हमें ट्रैवल से मिलता है, जैसे कि उन्होंने पिछली लाइनों में कहा। तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स इसमें बहुत से खतरे हैं, जैसे कि किसी भी तरह की आज़ादी में होते हैं, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रैवल करते हुए हम फिर से पैदा होते हैं और कुछ पलों में अपने खुद के एक छोटे, एक बचपन वाले और ज़्यादा खुले वाले अवतार में पहुंच जाते हैं। ट्रैवल कुछ हद तक वक्त को उलटने का तरीका है और एक दिन को एक साल या कम से कम 45 घंटे जितना लंबा बना देता है। और ट्रैवल खुद को ऐसी चीज़ों से घेरने का आसान तरीका है जो हम समझ नहीं पाते, बिल्कुल बचपन की तरह। तो लर्नर्स पिकोयर यहाँ पे हमें बताते हैं बहुत खूबसूरत और बहुत सच एक बात है, एक जो पॉइंट है ट्रैवल का, वो हमें बता रहे हैं कि कैसे जब हम ट्रैवल करते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये कभी महसूस किया होगा, जब हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, कोई अच्छी नई जगह जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें अक्सर दिन बहुत बड़ा लगता है क्योंकि हम कुछ ही पलों में बहुत सारी यादें बना लेते हैं। तो पिकोयर इसी बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि ट्रैवल एक ऐसा तरीका है जो इस तरह से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम को उलट देता है या टाइम को एटलीस्ट धीमा कर देता है। तो इस तरह से ये बहुत आसान तरीका है अपने आप को अपने बचपन के दौर में ले जाने का। हम सब के लिए बचपन बहुत प्यारा होता है, बहुत स्पेशल होता है। हम सब के लिए जो बचपन वाला दौर होता है वो सबसे अच्छा ज़िंदगी का दौर होता है। तो पिकोयर कहते हैं कि ट्रैवल अपने आप को बचपन के उस दौर में ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है जो हमारा सबसे खूबसूरत दौर था। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम कोई नई जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही होती है। और सेम चीज़ हमारे बचपन में था, जब हम बच्चे थे, बहुत सारी चीज़ों से ऐसे घिरे हुए थे जो हमारी समझ के बाहर थी। तो पिकोयर कहते हैं कि ये चीज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉसिबल होती है भाषा के अंतर की वजह से। तो भाषा इस दरार को खोलने में मदद करती है, क्योंकि जब हम वो एग्जाम्पल देके कहते हैं आगे की लाइन में, क्योंकि जब हम फ्रांस में जाते हैं तो हम सिर्फ एक नई ज़मीन पे कदम नहीं रख रहे होते, हम सिर्फ फ्रांस नहीं जा रहे, हम फ्रेंच में माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोगों का कल्चर है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जो उनका माहौल है, वो बिल्कुल हमारे माहौल से अलग होगा। तो हम सिर्फ एक नई ज़मीन पे ट्रैवल नहीं कर रहे होते, बल्कि हम एक पूरे नए कल्चर, एक नए माहौल में माइग्रेट कर रहे होते हैं। इस वजह से हम एक नए माहौल में उस बच्चे की तरह महसूस करते हैं जैसे हम बचपन में फ़ील करते थे, जिनके आसपास सारी चीज़ें नई हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्साइटिंग है, अट्रैक्टिव है, और काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ के बाहर है। और जैसे हम बचपन में थे, कैसे बिल्कुल सादा, बिल्कुल विनम्र, हम वैसे ही बन जाते हैं बिल्कुल नए माहौल में। तो और ये सब पॉसिबल होता है एक विदेशी भाषा बोलने की वजह से, एक बिल्कुल फॉरेन एनवायरनमेंट में जाने की वजह से, एक नई विदेशी भाषा बोलना सीखने की वजह से हम बहुत सारी नई चीज़ें सीख लेते हैं। वो कहते हैं कि जब वो हनोई में होते हैं और पिजन इंग्लिश बोल रहे होते हैं, यानी एकदम साधारण इंग्लिश, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि बेसिक इंग्लिश, जो कॉमन इंग्लिश वर्ड है जो वहाँ के लोगों को भी आते हैं, उसका इस्तेमाल करके बस अपने मतलब को समझाना। तो पिकोयर कहते हैं कि जब वो हनोई में पिजन इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो
वक्त भी वो अपने आप को बहुत पॉजिटिव और सिंप्लीफाइड पाते हैं, वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके दिमाग में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है कि वो किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सामने वाला उन्हें किस तरह से समझ रहा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहा है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनका मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं, बल्कि सिर्फ अपना मतलब बेसिक जो उनका मतलब है वो समझाने से होता है। So, travel for many of us is a quest for not just the unknown but the unknowing. I, at least, travel in search of an innocent I that can return me to a more innocent self. I tend to believe more abroad than I do at home, which, though treacherous again, can at least help me to extend my vision. And I tend to be more easily excited abroad and even kinder. And since no one I meet can place me, no one can fix me in my resume. I can remake myself for better as well as, of course, for worse. If travel is notoriously a cradle for false identities, it can also, at its best, be a crucible for truer ones. In this way, travel can be a kind of monasticism on the move. On the road, we often live more simply, even when staying in a luxury hotel, with no more possessions that we can carry, and surrendering ourselves to chance. तो ऑथर हमें बताते हैं कि ट्रैवल हम में से कई लोगों के लिए ना सिर्फ अननोन बल्कि अननोइंग की खोज है। अपना एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मैं कम से कम एक मासूम नज़र की तलाश में ट्रैवल करता हूँ जो मुझे खुद अपने आप के इनोसेंट सेल्फ में लौटा दे। मैं घर में रहकर जितना बिलीव करता हूँ, जितना लोगों में चीज़ों में, अपने आसपास के रिश्तों में विश्वास करता हूँ, उससे कई ज़्यादा मैं अब्रॉड में होकर बिलीव करता हूँ या विश्वास करता हूँ। और ये बात चाहे कितनी ही कपटी हो या बुरी हो, कम से कम मुझे अपने दृष्टि बढ़ाने में, अपना विजन बढ़ाने में मदद करती है। और मैं अब्रॉड में ज़्यादा आसानी से एक्साइटेड हो जाता हूँ, ज़्यादा काइंड यानी दयालु भी होता हूँ। और चूँकि जो लोग मुझसे मिलते हैं वो मुझे जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं हैं, वो मुझे मेरे रिज्यूमे में हेल्प नहीं कर सकते, तो मैं ख़ुद को बेहतर बना सकता हूँ, और साथ ही निश्चित रूप से बदतर भी। अगर ट्रैवल झूठी पहचानों का पालना है तो ये सच्चे लोगों के लिए क्रूसिबल भी हो सकता है। इस तरह ट्रैवल एक तरह का चलता फिरता मोनास्टिसिज्म भी हो सकता है, क्योंकि रास्ते पर हम बहुत सादगी से जीते हैं। चाहे हम किसी लग्जरी होटल में भी क्यों ना ठहरे हों, रुके हों, हम बहुत कम चीज़ों के साथ गुजारा करते हैं और बहुत सादगी से अपना दिन या रात जो है गुजारते हैं, क्योंकि हम मोस्टली ऐसी ही चीज़ें कैरी करते हैं जो जो बहुत ज़रूरी है और जिन्हें हम उठा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को चांस के भरोसे सरेंडर कर देते हैं, हालातों के भरोसे सरेंडर करते हुए जीते हैं बहुत सादगी के साथ। This is what Camus meant when he said that what gives value to travel is fear, disruption, in other words, or emancipation from circumstances and all the habits behind which we hide. And that is why many of us travel, not in search of answers but of better questions. I, like many people, tend to ask questions of the places I visit, and relish most the ones that ask the most searching questions back of me. The ideal travel book, Christopher Isherwood once said, should be perhaps a little like a crime story in which you're in search of something. And it's the best kind of something, I would add, if it's one that you can never quite find. केमिस का यही मतलब था जब उन्होंने कहा कि ट्रैवल को जो वैल्यू देता है वो है डर, डिस्ट्रप्शन, दूसरे शब्दों में मुक्ति, हालातों से, परिस्थितियों से और उन सभी आदतों से जिनके पीछे हम छुपते हैं। और यही वजह है कि हम ट्रैवल करते हैं, जवाबों की खोज में नहीं बल्कि बेहतर सवालों की खोज में। बहुत से लोगों की तरह मैं भी हर वो जगह जहाँ मैं विज़िट करता हूँ उन जगहों से सवाल करता हूँ, और सबसे ज़्यादा उन जगहों को इन्जॉय करता हूँ, पसंद करता हूँ जो मुझसे सबसे ज़्यादा खोज वाले सवाल पूछती हैं। क्रिस्टोफर आइशरवुड ने एक बार कहा था कि एक आइडियल ट्रैवल बुक को शायद थोड़ा सा क्राइम स्टोरी जैसे होना चाहिए, जिसमें आप किसी की तलाश में हैं। और मैं इसमें जोड़ूंगा कि सबसे अच्छी कहानी वो होगी जिसमें आप कभी भी उस चीज़ को खोज ना पाएं। I remember, in fact, after my first trip to Southeast Asia, more than a decade ago, how I would come back to my apartment in New York and lie in my bed, kept up by something more than jet lag, playing back in my memory over and over all that I had experienced, and paging wistfully through my photographs and reading and rereading my diaries as if to extract some mystery from them.
Anyone witnessing this strange scene would have drawn the right conclusion. I was in love. तो पिको यार कहते हैं याद करते हुए कहते हैं कि मुझे याद है वास्तव में 10 साल से ज़्यादा पहले अपनी साउथ ईस्ट एशिया की कुछ पहली ट्रिप से वापस आकर न्यूयॉर्क के अपने अपार्टमेंट में आकर बिस्तर पर लेटे रहते थे, और जिसकी वजह से जेट लैग या थकान नहीं थी बल्कि और भी कुछ थी। और अपने मन में वो ट्रिप की यादें, जो वो ट्रिप से आए हैं उनकी यादें बार बार दोहराते रहते, किसी फिल्म की तरह अपने एक्सपीरियंस को बार बार सोचते रहते और अपनी तस्वीरों को देखते रहते जो उन्होंने वहाँ खींची थी, और अपनी डायरीज़ जो उन्होंने वहाँ लिखी थी उनको पढ़ते, बार बार पढ़ते, ऐसे कि जैसे वो किसी रहस्य निकालने की कोशिश में है। और वो कहते हैं कि कोई भी मुझे इस हालत में देख लेता तो बिल्कुल सही कंक्लूजन निकालता उनके इस रवैये से, उनके एक बिहेवियर से, कि मैं प्यार में हूँ। तो लर्नर्स यहाँ पे हमें पिको ईयर के ट्रैवल को लेके पैशन को, जुनून को बिल्कुल सही तरीके से समझने का मौका मिलता है। When we go abroad is that we are objects of scrutiny as much as the people we scrutinize, and we are being consumed by the cultures we consume as much on the road as when we are at home. At the very least, we are objects of speculation who can seem as exotic to the people around us as they to us. All, in that sense, believed in being moved as one of the points of taking trips and being transported by private as well as public means. All saw that ecstasy tells us that our highest moments come when we are not stationary, and that epiphany can follow movement as much as it precipitates it. जब हम अब्रॉड जाते हैं तो हम उतने ही जांच के पात्र होते हैं जितना कि वो लोग जिनकी हम जांच कर रहे होते हैं, और हम कंज्यूम किए जा रहे होते हैं उन कल्चर्स के द्वारा जिन्हें हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं, सड़क पर उतना ही जितना हम घर पर होते हैं। और हम खुद ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्पेक्यूलेशन होते हैं, आकर्षण का केंद्र होते हैं, ऐसे ही जैसे कि वो लोग हमारे लिए होते हैं। इस नज़र से ये सब लोग बीइंग मूव्ड होने में विश्वास करते थे, यानी यहाँ से वहाँ जाने में, निजी और सार्वजनिक माध्यमों से परिवहन करने में। सब ने जान लिया था कि एक्सटेसी यानी परमानंद, इंटेंस जॉय से पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी के उच्चतम पल तब आते हैं जब हम एक जगह रुके नहीं होते, और एपिफनी यानी एहसास मूवमेंट को उतना ही फॉलो कर सकता है जितना कि वो उसकी वजह बनता है। When you go to a McDonald's outlet in Kyoto, you will find teriyaki McBurgers and bacon potato pies. The placemats offer maps of the great temples of the city, and the posters all around broadcast the wonders of San Francisco. And most crucial of all, the young people eating their Big Macs with baseball caps worn backwards and tight 501 jeans are still utterly and inalienably Japanese in the way they move, they nod, they sip their oolong teas, and never to be mistaken for the patrons of a McDonald's outlet in Rio, Morocco, or Managua. These days, a whole new realm of exotica arises out of the way one culture colors and appropriates the products of another. जब आप क्योटो में मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट में जाते हैं तो आपको तेरियाकी मैकबर्गर्स और बेकन पोटैटो पाइस मिलेंगे। वहाँ प्लेस मैट्स ऐसे होंगे जो पूरे शहर के महान मंदिरों के नक्शे पेश करते होंगे, और आसपास के पोस्टर सैन फ्रांसिस्को के अजूबों को दिखाते होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, अपने बिग मैक खाते हुए युवा लोग जो पीछे की ओर बेसबॉल कैप पहने हुए हैं और तंग 501 जीन्स पहने हैं, फिर भी पूरी तरह से अपने हर अंदाज में जापानीज़ है। जैसे वो चलते हैं, सिर हिलाते हैं या अपनी ऊलोंग चाय पीते हैं, और इन्हें कहीं से भी गलती से भी मोरक्को, रियो या मैनागुआ के मैकडॉनल्ड्स के पैट्रॉन्स यानी कस्टमर्स के रूप में नहीं देखा जा सकता या समझा जा सकता। इन दिनों एग्जॉटिका का एक नया क्षेत्र इस चीज़ से उभर कर आ रहा है कि कैसे हम एक दूसरे की चीज़ों को कल्चर कलर करते हैं। तो यहाँ पे पिको ईयर हमें एक बहुत अच्छी बात और बता रहे हैं कि ट्रैवल की, कि कैसे ट्रैवल की वजह से हम एक दूसरे के कल्चर्स के को लेन देन कर पाते हैं। तो learners, will stop the video here, will stop this part over here, and we will complete the next part, and hopefully we'll complete the whole chapter in the next video, in the third part. I hope you understood everything and enjoyed learning with me. If you like this video, give this video a thumbs up, share among your friends, and subscribe to the channel. Thank you very much.